मैं रिक्वेस्ट करूंगी मेलकम भाई से कि वो जो है दुआ में हमारी रहनुमाई करें, और अफान के लिए और आज के कलाम के लिए, खास तौर पे हम सब के लिए दुआ कीजिए कि हम खुदा के कलाम को दुरुस्त रूप के साथ सीखने वाले हैं और पूरी तवज्जो के साथ, संजीदगी के साथ खुदा के कलाम को जो है वो सीख कर उस पर अमल करने वाले बन सकें। जी वेलकम बैक। Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for this opportunity, the breath of life this morning, that Father, that we were able to join this fellowship of believers to come before you, Lord, open our hearts. And Father, we do that this morning. And Father, we ask your presence in our life. You have said whether 2 or 3 are gathered, you are in midst of us. And we believe that you are in midst of us right now. So we come before the throne boldly, and we bring this request, knowing that when we come in the name of Jesus, our prayers are heard as long as they are in your will, Lord, and according to your word. Father, so we pray for our, as the request has been made for our leaders. And Father, we pray for them that they will use the wisdom and the understanding you have given them, that they will use it for the right purposes. Father, I pray that they will do your will. And Father, if they don't do your will, that they are removed. And Father, the right people are in the place. Those who will look after the people, that those who will do the will of God in that country and around the world. And Father, we believe that it will be done when we all pray together and that we are in unity. Father, we also pray for those who have asked for prayer for different things. And Father, we believe that, Father, we are asking that in your name. Father, we pray for the fellowship of believers that as we have asked, that our minds will be open, that we will open our hearts before you, that we will be willing to receive your word. And Father, that it will come inside of us and it will stay inside of us, and we will meditate on it and grow. And Father, be a blessing to others as well. We ask all this in the name of our Lord Jesus. Amen. Amen. Thank you so much. और अब पास्टर साहब आपसे दरख्वास्त है कि आज खुदावंद ने हमारी नसीहत के लिए जो भी पैगाम आपके दिल में रखा है, आप जरूर हमारे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। बहुत मेहरबानी। आज 25 मार्च है और सन 2023 है। मैं आप सबको फेलोशिप ऑफ बिलीवर्स की हफ्तावारी बाइबल स्टडी में खुशामदीद कहता हूं। पिछले हफ्ते हमने जो जुमला खत्म किया था वहां से आपको याद करवा के आज हम हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप पे कुछ बात करेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा, मैं जरूर चंद बातें और भी बयान करना चाहता हूं। मेरी जो दुआ थी पिछले हफ्ते जिस पे मैंने खत्म किया वो ये था कि मे आई नो दी मोर क्लियरली and love thee more dearly and follow thee more dearly. ये 3 काम अगर हम कर जाएं, ये 3 बातें अगर हम कर लें अपनी जिंदगी में, तो हमारे जो फैमिली के ताल्लुकात हैं, रिश्तेदारियों के ताल्लुकात हैं, वो बहुत उम्दा और बेहतर तरीके से चल सकते हैं। तो आज मैं चंद बातें करना चाहता हूं। लविंग आवरसेल्फ करेक्टली, लविंग आवरसेल्फ करेक्टली। जब कोई मर्द या औरत, बीवी या शौहर, बहन या भाई, इफ दे लव देमसेल्फ करेक्टली, मसाइल पैदा नहीं होंगे। हमारे सबसे बड़े मसले ये हैं, वी रियली डोंट नो हाउ टू लव आवरसेल्फ करेक्टली। तो इस बात के ऊपर दुरुस्त तरीके से, सही तरीके से अपने आप से हम कैसे मोहब्बत करें? How can we define we define ourselves by the world or by our God? या तो हम दुनिया की नजर में अपने आप को देखना चाहते हैं या फिर हम खुदावंद की नजरों से अपने आप को देखना चाहते हैं। तो आप अपने आप से दुरुस्त तौर पर मोहब्बत का मतलब जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं।
इससे हम ये नतीजा निकालते हैं कि हम कलाम पाक की रोशनी में, खुदावंद यीशु मसीह की जात पाक में अपनी नई शनाख्त जो है, न्यू आइडेंटिटी, उस न्यू आइडेंटिटी में कैसे चलें। Once we recognize who we are in Christ with the new identity which is given to you and me, तो then हम फिर पूरे तौर पर अपने आप को जानते हैं और हम दूसरों को भी जान सकते हैं कि वो किस है में। तो हम अपने आप को भी अपनी नजरों से देखते हैं और दूसरों को भी सिर्फ अपने ही नजरों से देखते हैं। ये सबसे बड़ा मसला है। तो मैं रिपीट करता हूं ये जुमला, क्योंकि ये काबिल गौर है, काबिल जिक्र है। हम अपने आप को अपनी नजरों से देखते हैं, अपने व्यू पॉइंट से देखते हैं। मैं बड़ा ये, तो मैं बड़ा वो, तो मैं बड़ा काबिल, तो मैं बड़ा फलाना, तो मैं बड़ा फलाना, मैं 22 खानदानों से, दूसरे चवल खानदानों से। ये हम कहते नहीं हैं, बट वी हैव दैट एटीट्यूड जो हमारे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। तो हम अपने आप को अपनी नजरों से देखते हैं और हद ये है कि सिर्फ दूसरों को भी अपनी ही नजरों से देखते हैं। तो सतही तौर पर, सुपरफिशियली, सरसरी तौर पर, ऊपरी तौर पर लापरवाही से देखते हैं और बैरूनी चीजों को देखते हैं जो नजर आती हैं। चेहरे को देखते हैं, रंग को देखते हैं, कद को देखते हैं, फैमिली बैकग्राउंड को देखते हैं। तो ये लापरवाही से देखते हैं। हमें अपने बारे में बड़ी गलतफहमियां होती हैं। इसी वजह से हम कभी भी ये नहीं चाहते कि खुदावन मुझे डिफाइन करे। God should not define who I am. I should define who I am. दुनिया मुझे बताए कि मैं कौन हूं, और जो दुनिया मुझे कहती है कि तुसी बड़े चंगे हो, तुसी बहुत ही शरीफ हो, ਤੁਹਾਡੇ जाते को मां ने जम्या ही नहीं। ये जो चीजें हमें सुनने में आती हैं, हम उनको बिलीव करते हैं और ये नहीं जानते कि ये मक्खन लगा रहे, ये चमचागिरी कर रहे, ये मतलब प्रस्त है। नहीं, हम बस जो हमें वो कहते हैं हम उनको सुनते हैं, एंड वी डोंट केयर खुदा हमारे बारे में क्या ख्याल करता है। तो जो हम दिखाते हैं वही हम बताते हैं, जैसे मैं हूं वो नहीं बताते। जो हम दिखाते हैं, अपने आप को जाहिर करना चाहते हैं, मक्कारी करना चाहते हैं, वो लोगों को दिखाते हैं। इन रियलिटी हु आई एम, आई ऑलवेज हाइड दैट। हम अपनी सेल्फ इमेज, खुद ख्याली या अपने बारे में जो राय कायम रखते हैं, वो हमें अपने माँ बाप के जरिए से मिलती है। अब जरा तवज्जो कीजिएगा इस बात की तरफ। फैमिली के हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप की हम बात करने लगे हैं, और इसमें जो जड़ है मैं उसकी तरफ जाता हूं। जड़ ये है कि जो सेल्फ इमेज है, सेल्फ खुद ख्याली है, मेरी अपने बारे में क्या राय है, ये मुझे आइडिया कहाँ से आया है? ये मुझे अपने माँ बाप से ये आया है, उनके एटीट्यूड से, उनके रवैयों से और उनकी ओपिनियन, उनके ख्याल से ये आइडिया मेरे अंदर बचपन से कूट कूट के भर दिया गया है। मैं नन्ना फरिश्ता, मेरा प्यारा बबलू, मेरा प्यारा बच्चा, ये माँ पता नहीं कहाँ कहाँ से ये बातें, और उसकी बदतमीजी, उसकी तरबियत की तरफ कोई तवज्जो नहीं देती बाज माएं और बाज बाप, बल्कि उसकी क्यूटनेस के ऊपर और उसकी तारीफों के ऊपर। और फिर अगर अंकल के घर आ जाए, अंकल को ABC सुनाओ, अंकल को 1 2 सुनाओ, वही नहीं चक्रों में हम पड़े हुए हैं और इस तरीके से हम यहाँ रह जाते हैं। तो जो परफॉर्मेंस बेस्ड है, हम उसके आदी हो जाते हैं। परफॉर्मेंस बेस्ड लव, परफॉर्मेंस बेस्ड तारीफ, कि जैसा मैं करूं तो मेरी जो परफॉर्मेंस बेस्ड है उसके ऊपर मुझे एक्सेप्ट किया जाए, मेरी एक्सेप्टेंस जो है वहां से आए। हम अपने आप को वर्थलेस समझते हैं हकीकत में। ये जब मैं हम कह रहा हूं तो प्लीज कहीं ये ना समझे कि मैं आपको इसमें कोई इल्जाम दे रहा हूं। हम मीन मैं भी, और मजमूई तौर पर मैं पाकिस्तान इंडिया की बात कर रहा हूं।
हम अपने आप को वर्थलेस, बेकार समझते हैं, बेकीमत समझते हैं, फालतू समझते हैं, नकारा और नकम्मा समझते हैं, कहता कोई नहीं। लेकिन माँ बाप के अलावा हमें हर बंदा बुरा ही कहता है, और एक वक्त वो भी आता है माँ तो कहती है ये मेरे बच्चे तो मेरी आंखों के तारे हैं, आसमान के सूरज हैं। बाप कहता बड़ा अच्छा वाले है, तू तो बंदा ही बड़ा खराब है। माँ की राय और बाप की राय में फिर थोड़ा सा फर्क आ जाता है। माँ हमेशा तारीफ करती है, और बाप चूंकि असलियत को जानता है अपने बेटे की, उसकी नाकामियों को देखता है, उसकी तालीम में दिलचस्पी को देखता है कि ये बड़ा होके नकारा आदमी बनेगा, तो ये इमेज हमें अपने बाप से मिल जाता है। तो ये भी बातें हमें अपने दिमाग में रखनी चाहिए। तो खुदावंद खुदा की जो खुशनुदी है, एक्सेप्टेंस है, उसको भी हम हासिल करना चाहते हैं। हमें खुदावंद के कलाम पाक की रोशनी में, कलाम पाक की सदाकत, सच्चाई की रोशनी में अपने आप को देखना चाहिए, ना कि दूसरों की राय के बारे में अपने आप को देखना चाहिए। हमारी जो नफ्सियाती जरूरत है, सेल्फ लव की जरूरत है, हम अपने आप को देखते हैं और अपने मसाइल, प्रॉब्लम का हल खुद तलाश करते हैं। काश ऐसा होता कि हम अपने मसाइल का हल खुद ही तलाश करने की कोशिश करते। ऐसा भी आज के नौजवान कम कर रहे हैं। कलाम पाक हमारी रहनुमाई फरमाता है कि खुदावन को तकते रहो, लुक टू क्राइस्ट, ताकि हमारे मसाइल का हल हमें मिल जाए, नॉट टू योरसेल्फ। अगर हम इतने ही 30 मार खान होते कि अपने मसाइल का हल खुद ही ढूंढ लेते, तो आज हमारी हालत कुछ और होती। तो कलाम इज encouraging you and me to look for the guidance from the word of God। कलाम पाक की रोशनी में आप खुदावन की तरफ तकते रहो। तो लिहाजा लविंग आवर सेल्फ करेक्टली का मतलब ये लेना चाहिए कि सर्विंग आवर सेल्फ or seeing ourselves as God is seeing you and me। ये बात बहुत अहम है, बहुत अहम है कि आप इस नुक्ते को समझें कि how is God looking at me, what is my Lord's opinion about me। क्योंकि वो जाहिर को नहीं देखता, वो दिलों को देखता है। तो ये काम खुद ब खुद ऑटोमेटिकली नहीं हो जाता, क्योंकि ये काम एक यानी एक काउंटलेस एफर्ट है, हमारी सकाफत के बरक्स है। हमें मुसलसल कलाम पाक से हदायत लेने की जरूरत है, खुदावन से रफाकत रखने लाजमी है। हमें दूसरे अहम हम ख्याल मसीही दोस्तों से रफाकत में कायम रहना भी बहुत जरूरी है। बैड कंपनी स्पॉइल द गुड कैरेक्टर, ये आपने सुना हुआ है। तो अपने आप को ऐसी कंपनी में रखना जहां से आपको अच्छी नसीहत मिले, जहां से आपको अच्छी मिसाल मिले, इनकी तरफ तवज्जो करना बहुत है। तो जैसे आप अपने लिबास का बहुत ख्याल रखते हैं, अपनी सेहत का ख्याल कुछ रखते हैं, कुछ नहीं रखते, इसी तरह से आपको अपने दोस्तों के ऊपर भी बड़ी गहरे चुनाव करने की जरूरत है। अच्छे ख्याल, अच्छी रफाकत, अगर हमने अपने आप पर गौर करके अमल ना किया, खुदावन से जुड़े ना रहे, कलाम पाक से ना जुड़े रहे, तो हम कैसे अपने मसीही खानदानी जिंदगी में मजबूत बन सकते हैं। हम 3 चीजों को मरकज ना बनाएं। एक तो विजिबल चीजें जो हैं उनको मरकज ना बनाएं, जो जाहिरी तौर पे नजर आती है। जो इनविजिबल हैं उनकी तरफ तवज्जो करें। सच्चाई, ट्रूथ रेत की तरह हमारे हाथों की उंगलियों से स्लिप थ्रू हो सकता है, इसलिए तरफ भी तवज्जो करने की जरूरत है। तो खुदावन हमें कैसे देखते हैं, ये आज की अहम गुफ्तगू। मेरी और आपकी अपने बारे में क्या राय है, हमारे माँ बाप या दुनिया हमारे बारे में क्या कहती है, हमें
फजल यानी ग्रेस का, खुदावंद के फजल का, खुदावंद की ग्रेस का पता होना चाहिए, क्योंकि बिब्लिकल डॉक्ट्रिन ऑफ ग्रेस जो है वो हमें हलीम बनाती है, हम्बल बनाती है। जब हम खुदावंद की ग्रेस, खुदावंद के फजल पर हमारी नजरें नहीं रहती, अपने हुस्न पर, अपनी कारकर्दगी पर, अपनी तालीम पर, अपनी दौलत पर, अपने ताल्लुकात पर हमारी नजरें पड़ जाती हैं कि हम कैसे तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं, तो खुदावंद के फजल से हमारी आंख दूर हो जाती है। तो हमें इस बात की जरूरत है कि हम फूंक ना भर रहे अपने आप में, मुबालगा राय से काम ना रहे, हलीमी अख्तियार करें। खुदावंद का फजल हमें साफ साफ बताता है कि खुदावंद से जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अपार्ट फ्रॉम मी यू कैन अकम्प्लिश नथिंग, जीरो। ये खुदावंद का फजल है। हम किसकी तारीफें करते रहते रात दिन? बच्चा इम्तिहान में फेल हो जाए, मां कहती है पढ़ाई ते बड़ी कीती सू, राती ना वाल पखे दे नाल बन के ना डोरी दे नाल ते पढ़दा रहिंदा सी ताकि इनू ना झटका ना आवे ते नींद ना पए, जागदा ही रहे। बड़ी तारीफा अफसोस दे नाल करदी। बहुत मेरा बच्चा मेहनती है, पढ़दा बड़ा रहा है, आखिरी ते पूरा महीना ही पढ़दा रहा ते 11 महीने की करदा रहा, एदा जिक्र नहीं करदी। तो अब आप सोचें कि जब वही बच्चा फेल होता है तो मां कहती है मेहनत बड़ी की है लेकिन बस खुदा दी मर्जी है इसी तो भला हो जाए। ये खुदा की मर्जी थी तेरा पुत्र फेल हो जाए? ये कौन सा खुदा है जिसको तू मानती है, जो तेरे बेटे को कामयाबी नहीं होने दे रहा, और ये हर साल फेल ही हो जाता है और नंबर भी इसके पूरे नहीं आते? ये किसी टीचर से पूछो, वो आपको इसका सही जवाब देगी या देगा। तो लिहाजा अब इसी तस्वीर को उल्टा कर दे। अगर बच्चा पास हो गया, वो तो भला हो जाए। माँ के पांव जमीन पे नहीं आते, हवा में चलती है, मिठाइयां बांटती है और फिर नहीं कहती कि ये खुदा की मर्जी थी, बस ये किस्मत ची लिखिया सी फेल होना। अब वो किस्मत भी भूल जाती है, अब वो सारा कुछ भूल जाती है, सारा क्रेडिट अपने आप को, सारा क्रेडिट अपने बेटे को देती है और फूले नहीं संभालती। तो हमें इन चीजों का ख्याल रखने की जरूरत है। We can accomplish nothing from God. This is the grace of God. तो we can do nothing, तो ये हमेशा याद रखिए, credit goes to our God. हम खुदावंद के बगैर नातवा हैं, जिस्मानी कुव्वत से महरूम हैं और नाकाफी हैं, नालायक हैं। हम खुदावंद पर भरोसा करते हैं, अपने आप पर भरोसा नहीं करते। खुदावंद का फजल हमारी रहनुमाई फरमाता है और खुदावंद में हम नए मखलूक हैं। तो ये दो एक आयतें मैं दे के इस मौजू को यहाँ खत्म करता हूँ। थोड़ा थोड़ा मैं हर हफ्ते कुछ लविंग योरसेल्फ करेक्टली, लविंग गॉड कंप्लीटली एंड लविंग अदर पैशनेटली, इसके ऊपर आपसे बातें करता रहूंगा, क्योंकि मेरी नजर में ये मरकजी प्रॉब्लम है हमारे कलीसिया का। तो अब आज जो आयत आपके सामने 3 आयतें रखना चाहता हूं, लविंग आवर सेल्फ करेक्टली, रोमन चैप्टर 1 and 2, रोमन चैप्टर 1 and 2। बस अब जो खुदावन यीशु मसीह में हैं, दोज हुआ नजात याफ्ता, जिन्होंने तौबा कर ली है, खुदावन को पहचान लिया है, कबूल कर लिया है, पहली बात तो आपको ये याद रखनी चाहिए, उन पर सजा का हुक्म नहीं है। दैट हु यू आर। तो डोंट रिमेन अंडर गिल्ट। पुराने गुनाहों को याद ना करते रहो। जो कुछ आपसे हुआ है उन चीजों को फरामोश करो, क्योंकि खुदावन ने उनको फरामोश कर दिया है। तुम्हारे गुनाह किसी भी रंग के हो, वो बर्फ की मानत सफेद हो जाएंगे। तो इसलिए रिमेंबर हु यू आर। तुम पर सजा का हुक्म नहीं, क्योंकि जिंदगी की रूह की शरीयत ने खुदावंद यीशु मसीह में मुझे जिंदगी की रूह की शरीयत से आजाद कर दिया है। दैट इज अ फैक्ट नंबर 1।
Romans chapter 8 verse 17. Chapter 8 verse 17. और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं। वारिस भी यानी खुदा के वारिस, खुदावंद यीशु मसीह के हम मिरास, बशर्ते के हम उसके साथ यानी खुदावंद के साथ दुख उठाएं। हम मिरास बनना चाहते हैं, प्रॉपर्टी के डीलर बनना चाहते हैं, हिस्सेदार होना चाहते हैं। हम मसीह के हम मिरास हैं, लेकिन खुदावंद के खातर, उसके नाम की खातर दुख उठाने से घबराते। तो हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि खुदावंद के जलाल पाएं, खुदावंद के साथ जलाल भी पाएं। दुख उठाओगे तो जलाल भी पाओगे। तो अगर टेम्पटेशन में दुख आ जाए, हम इनकार कर दें और दूसरे के साथ चलना शुरू कर दें, ये कैसी मिरास है, ये कैसे फर्जंद हैं, ये नाफरमान फर्जंद हैं, ये वफादार फर्जंद नहीं है। अब आखिरी आयत आज के लिए, रोमन चैप्टर 15 वर्स 7। रोमन 15:7। बस जिस तरह खुदावंद मसीह ने खुदा के जलाल के लिए तुम्हें अपने साथ शामिल कर लिया है। बड़ी गहरे लफ्ज हैं ये। जिस तरह से खुदावंद ने खुदा के जलाल के लिए तुम्हें अपने साथ शामिल कर लिया है, उसी तरह तुम भी एक दूसरे को अपने साथ शामिल कर लो तो अड्डा पला हो जाए। ये कब होगा? इंज नहीं हो सकता बाबा, मैं किथे ते तुसी किथे। तुहाडी हैसियत की क्या ये I have been accepted by Christ, therefore accept one another, just as Christ also accepted us to the glory of God. Hard lesson. How do I love myself correctly? तो आज के लिए ये मैं 3 आयतें आपके सामने रखना चाहता हूं और आइंदा हफ्ते और भी रखना चाहूंगा। आइंदा हफ्ते हम खुदावंद का सफर यरूशलेम की तरफ है, जो सलीबी वाकयात हैं उसकी तैयारी के दिन है। काश हम सारे कवर कर सकते, क्योंकि हम हफ्ते में सिर्फ एक दिन ही मिलते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि जितना आपके साथ इस सफर को और इसकी यादों को ताज़ा कर सकूं वो करता हूं। लेकिन मेरा मसला टाइम का है, क्योंकि टाइम प्रॉब्लम है, हमारी बिजी लोग हैं। मैं तो आदी हूँ 3-3 घंटे बोलने का नॉन स्टॉप। मैंने सलीबी कलमात और दास्तान कलवरी का एक प्रोग्राम किया, कई बोल के 2-3 प्रोग्राम किए। एक कैथोलिक चर्च के साथ कराची सेमिनरी में किया, 3.5 घंटे नॉन स्टॉप कलाम किया और बागे गतसमनी से लेकर मकाम कलवरी तक 7 कलमात के साथ उसको ख़त्म किया। तो मैं वो वादा तो पूरा नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश करूंगा कि जितना मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। ऐसी बारीकियां, ऐसे काम जो शायद हमने भुला दिए हैं और अब हमें उनको दोबारा से याद करने की जरूरत है। आज जो चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, आज का मौजू, मैंने पिछले हफ्ते इसकी तलावत कर दी थी, लेकिन फिर भी मैं इसकी तलावत करना चाहता हूं ताकि हमारा मौजू बिल्कुल वाज़ेह हो जाए। मेरे साथ देखिएगा, Ephesians chapter 5 verse 20 से हम शुरू करते हैं ताकि जो बैकग्राउंड है उसको हम समझ सकें। आज हमारी बेटियां जो हैं, हमारी बहनें या हमारी बीवियां, वो बहुत सारे लिबरल होने की वजह से और वुमेन मार्च की वजह से, माय बॉडी माय मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी और इस तरह की बातें करने वाले लोग, वो खुदावंद के कलाम को नहीं जानते। तुम्हारी मर्जी तो वैसे ही किसी काम की नहीं है, अधूरी है और हम उसको कबूल नहीं करते। लेकिन जिन मानों में आप कहते हैं, कुछ मानों में हम आपके साथ खड़े हैं और उसकी तारीफ करते हैं। कोई मर्द जो नेक मर्द है वो कभी भी उससे इनकार नहीं करेगा। लेकिन जिन मानों में हम समझे हैं, उसी में
जिन मानों में आप हमें समझाती हैं उन मानों में कोई भी नेक मर्द उसका साथ नहीं देगा। तो इस वजह से हम कलाम की रोशनी में बात करते हैं, तो इसकी वजाहत मैंने कर दी है। अब देखिए, तिलावत सुनिएगा। और सब बातों में, अंडरलाइन द वर्ड सब, ये चंद बातों में नहीं, आपकी फेवरेट बातों में नहीं है, सब बातों में हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमेशा खुदा बाप का शुक्र करते रहो। दैट इज नंबर 1। हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप के लिए ये बात बहुत जरूरी है कि सब बातों में, चाहे वो फीकी हो या मीठी हो, कड़वी हो या अच्छी हो, कुछ थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा हो जाए तब भी, और जब प्यार की पींगे मजबूत हो जाए तो तब भी, दोनों सूरतों में, सब बातों में हमारे खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र करते रहो। और आगे देखिए, ये हस्बैंड एंड वाइफ के लिए, और ताबेदारी और फर्मा बरदारी एंड सबमिशन को समझने के लिए, क्योंकि हम ये आयत नहीं पढ़ते और बीवी से ये तवक्को करते हैं कि अपने शौहरों की ताबे रहो, तो मॉडर्न पढ़ी लिखी औरत, काम करने वाली औरत, पैसा कमाने वाली औरत, वो इसका बड़ा बुरा मनाती है। और कुछ को मैंने यहां तक सुना है, ये तो व्हाट पॉल इज सेइंग, आई डोंट एग्री विद दैट, दिस इज नॉट द वर्ड ऑफ गॉड, दिस इज व्हाट पॉल इज सेइंग। तौबा तौबा तौबा, आई कैन नॉट बिलीव दैट कि लोग ये बातें कर रहे हैं कि दिस इज व्हाट पॉल इज सेइंग। तो अब देखिए, अगली आयत पढ़ने से पहले मैं रिपीट कर रहा हूं, और मसीह खुदावंद के खौफ से, मसीह खुदावंद के खौफ से एक दूसरे के ताबे रहो। इसमें सास, बहू, दामाद, ससुर, चाचा, बाबा, वाइफ, हस्बैंड सब शामिल हैं। एक दूसरे के ताबे रहो। ए बीवियों, ए शोहरों, ए सासों, ए मासियों, ए फुफियों, ये सब की बात कर रहा हूं। सब किसके खौफ से? एक दूसरे के खौफ से नहीं, बीवी के खौफ से नहीं, शौहर के खौफ से नहीं, सास के खौफ से नहीं, माँ बाप के खौफ से नहीं, मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबे रहो। पीरियड, दैट्स इट। अब देखिए अगली आयत, ए बीवियों अपने शौहरों के, ये अपना अंडरलाइन करें, ए बीवियों अपने शौहरों के ऐसी ताबे रहो, कैसी? ऐसी जैसे खुदावंद की। स्टैंडर्ड भी बता दिया, मयार भी बता दिया। अब आपको पता चल गया कि इसमें आपकी मर्जी कितनी चलेगी, आपकी दादागिरी कितनी चलेगी, और खुदावंद के कलाम की बर्तरी कैसे होगी। हम रिएक्ट करते हैं, हाउ डेयर यू से दैट आई मस्ट सबमिट टू माय हस्बैंड, वी आर इक्वल, आई एम एजुकेटेड, आई एम दिस, आई एम दैट। ये मेरी राय नहीं है, ये खुदा के कलाम का लिखा हुआ है, मैं तो वही पढ़ रहा हूं, और इसकी बैकग्राउंड में आपको पैदाइश से बताऊंगा, ताकि आपको पता चल जाए कि ऐ बीवियों अपने शौहर की ऐसे ताबे रहो जैसे खुदावंद की। तो अगर आपको खुदावंद की फर्मा बरदारी में परेशानी है, उसको आप क्वेश्चन करती हैं, तो फिर बीवी को हक है कि अपने शौहर की ताबेदारी को भी क्वेश्चन करे, क्योंकि शौहर बीवी का सर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सर है, और वो खुद बदन का बचाने वाला है। अब ये बात जो है, ये कलाम पाक में हुक्म है, हदायत है कि खुदावंद के खौफ से एक दूसरे के हमने ताबे रहना है। पाक कलाम में खानदान के दो मरकजी बुनियादी सतून हैं। खानदान की इमारत इन दो सतूनों के ऊपर खड़ी हुई है। उनको मुखातब करके हमें बड़ी अहम और मौसर और लाजमी हौसला अफजाई की गई है। लिहाजा हमें इसका सुनना, समझना और दुरुस्तगी के साथ इसका फैसला करना बहुत जरूरी है, ताकि खानदान के दो मरकजी और बुनियादी असूल या सतून अपनी अपनी जिम्मेदारियां
जानकर समझकर पूरी वफादारी के साथ, पूरे खुलूस के साथ, ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें, बल्कि तब तक करें, ये शादी वाले दिन की नहीं कि अच्छे अच्छे मेकअप शेकअप करके घुंघट शुगट लेके तो नीचे करके तो सब बनावट के ये वो ऐसा नहीं, कब तक ये करना है, शादी वाले दिन नहीं, रुखसती वाले दिन नहीं, सिर्फ मरते दम तक करना है। खानदान के लिए ये रूल हैं, ये कानून है। पहली अहम जिम्मेदारी म्यूचुअल सबमिशन है। ये अंडरलाइन द वर्ड म्यूचुअल सबमिशन। अब सबमिशन क्या है? प्रॉब्लम यहां आता है कि नालायक बंदा हो, शौहर नेक ना हो, तरबियत उसकी अच्छी ना हुई हो, उससे फिर बीवी का रिएक्शन आता है। आना भी चाहिए, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो कलाम की तालीम है वो भी, और जो हमारे मुआशरे में हो रहा है उसको दोनों को साथ लेके चलना है। तो अब सबमिशन क्या है, पहले ये समझ लें। ताबे रहना, फर्मा बरदार होना, तस्लीम करना, अतात करना, तामील करना, हथियार डाल देना, नफरत ना करना, इज्जत करना, बुड़बुड़ ना करना, ताने ते छिबियां ना देना, ये सारा काम जो है ये सबमिशन में शामिल है। मैंने कई लफ्ज इस्तेमाल किए हैं और इसमें कई कॉन्सेप्ट हैं, सारों की वजाहत तो नहीं कर सकता। एक जो मैंने कहा आपको, पता नहीं आपने नोट किया, कि हथियार डाल देना, ये मिलिट्री टर्म है और ये लड़ाई के बाद होता है। तो एक फ्रीक जो है वो हथियार डाल देता है और सुलह की तरफ कदम बढ़ाता है ताकि खून खराबा ना हो। कैन यू अंडरस्टैंड द वर्ड सबमिशन? अब म्यूचुअल क्या है? क्योंकि दो लफ्ज मैंने कहे, अंडरलाइन कीजिए। इसका मतलब है बाहमी तौर पर, मिलकर, मुश्तरका तौर पर, दो तरफा, आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर, इकट्ठे। सिर्फ औरत के लिए सबमिशन नहीं है। मैंने पहली आयत क्या पढ़ी कि मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबे रहो। तो एक दूसरे में क्या यहाँ शौहर के ऊपर ये ताबे का सबमिशन का लफ्ज नहीं आता? ये हम भूल जाते, ये हम याद नहीं रखते। तो हमें बाहमी तौर पर जबरी नहीं, खुशी से, मोहब्बत से, प्यार से एक दूसरे को इज्जत देनी है, अपने आप से बेहतर समझना है, अव्वलियत देनी है, एक दूसरे से आला समझना है, अपने आप से आला समझना, कमतर नहीं समझना। फैमिली बैकग्राउंड कोई नहीं ना, असल चाहे मसला है। पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं औरतें और मर्द एक दूसरे के बारे में। और निकाह के वक्त बड़े मुस्कुरा मुस्कुरा के और शर्मा शर्मा के खड़े थे। उस वक्त तो आपको कोई इल्जाम नहीं आया, कोई ताना नहीं आया। अब आपने ये काम कर लिया, तो ये हमने वादे किए हुए हैं, उस वादे पर आपने दस्तखत किए हुए हैं और उस दस्तखत के ऊपर गवाह मौजूद हैं। और ये सिर्फ आपके माँ बाप और लड़के या लड़के के माँ बाप के दरमियान नहीं है, खुदावन मौजूद थे और सलीब के उस बंधन में आप बंधे हुए हैं। तो हमारी पहली जिम्मेदारी बीवी और शौहर के लिए ये है कि हम मसावी हैं, वी आर बराबर, वी आर इक्वल। ये मर्दों को याद रखना बहुत जरूरी है, खास तौर पे पंजाबी मर्दों। वी आर इक्वल, वी आर मसावी, और हम कमतर एक दूसरे को नहीं समझेंगे, हम बराबर हैं। हमारे अंदर एक ही रूह है, जिस रूह से आदम को के नथनों में जिंदगी का दम फूंका गया था, उसी रूह देने वाले ने पसली से औरत को बनाया था। तो हमारी रूह एक है, जिसकी वजह से हम जीती जान हुए थे। तो सबमिशन
is a spiritual act. फर्माबरदारी की रूह, ताबेदारी की रूह हमारे खानदानी निशानी होनी चाहिए, तुराए इम्तियाज होना चाहिए. Submission is a तुराए इम्तियाज for a Christian wife and a Christian husband. दोनों की बात कर रहा हूं, जो हर तरह की जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए तैयार रहते हैं, कमर बस्ता रहते हैं. ये मेरी जिम्मेदारियां खुदा ने आपके सुपुर्द लिख कर बताई है ताकि आप भूल ना जाएं, और भूल जाएं तो मेरी तरह का कोई फकीर आपको याद करा सके कि देखो ये लिखा हुआ है. ये सारे काम खुदावन के खौफ से, द फियर ऑफ द लॉर्ड होने चाहिए. खुशी से, जोश से, जज्बे से करने हैं, पूरे दिल से मोहब्बत करनी है, मेहनत करनी है, एक दूसरे के लिए इज्जत और एहतराम मुहैया करना है. सोचिएगा, एक दूसरे के लिए इज्जत और एहतराम मुहैया करना है. कौन किस किताबे है, ये जरा अहम नुक्ता आ गया, तो इसकी तरफ तवज्जो कीजिएगा. आप जरा अपने दिल में सोचिएगा, कौन किस किताबे है. बीवी शौहर के और शौहर बीवी के. सवाल क्या है, कौन किसके ताबे है? जवाब क्या है? बीवी शौहर के, शौहर बीवी के, और दोनों खुदावन के. कर लो जो करना. दोनों खुदावन के. और किस वजह से? रिश्तेदारों की वजह से, माँ बाप की, बहन भाइयों की, अपने प्रामाणिक इज्जत की खातर नहीं, खुदावन की खातर. प्रामाणिक इज्जत की खातर नहीं. हाथ चवल ने हमें को ऐसा परफेक्ट नमूना चाहिए जिसपे उंगली ना आ सके, जिसपे एतराज ना हो सके. तो खुदावंत के खौफ में एक दूसरे की इज्जत करो. सबूत क्या है? क्यों ताबे नहीं? मेरा मियां चुड्डू है, उसको नहीं पता, इतनी अकल नहीं है, मैं ज्यादा होशियार हूं. बीवी शायद ये कह सकती है. इसी तरह से शौहर कह सकता है, मेरी बीवी बेवकूफ है, इसको पता नहीं है, समझ नहीं है, पागल है या नीम पागल है, इसलिए मैं इसको अपने ताबे रखूंगा. सुनिए सबूत क्या है. इफ्सियों 5 बाब की 21वीं आयत है, मसीह खुदावंत के खौफ से एक दूसरे के ताबे रहो. ये मैं बार बार कह रहा हूं. अब बीवी और शौहर का इम्तिहान, टेस्ट क्या है? चलो टेस्ट की बात कर लेते. इम्तिहान की, क्या वो वाकई ही अपने खुदावंत मसीह के खौफ को मानने वाले मियां बीवी? दैट इज अ टेस्ट नंबर 1. क्या वो नजात के भेद और राज को जान चुके हैं? अगर शौहर अपनी मनमानी करे, अपने आप को पंजाबी मर्द साबित करे कि मेरी मर्जी चलेगी, मशवरा करना जरूरी नहीं है. बीवी से क्या मशवरा करना? तो मर्दां दा काम हुंदा काम फैसले करना. ये हमारा ख्याल नहीं है, ये कलाम का ख्याल नहीं है. मैं घर का सरबराह हूं तो अड्डा पला हो जाए, मैं मालिक हूं, मैं बड़ा हूं. अगर कोई शौहर ये सोच रहा है, क्या वो वाकई में क्रिश्चियन है? नहीं. He is not a believer, he is not a Christian, he is not one of us. तो ये कलाम उनके लिए नहीं है. ये कलाम मसीही शौहरों के लिए है, मसीही बीवियों के लिए है. ऐसा मर्द इम्तिहान में फेल हो जाएगा. और अगर बीवी अपनी मर्जी करे, मनमानी करे, नाराजगी दिखाए, नखरे दिखाए, दुख दे, रोए पीटे, गुस्सा करे, वो भी इम्तिहान में फेल होगी. कर लो जो करना है. दोनों का इम्तिहान पास करना लाजम है. हर रोज, हर हफ्ते, तमाम जिंदगी भर इम्तिहान में रहते हैं हम. खुदावन के खौफ से एक दूसरे के ताबे रहना हमारा मसीही इम्तिहान है. इस इम्तिहान में फेल ना हो जाना. तो अब जब आपको गुस्सा आए, अब जब आपका दिल करे मैं इसको थप्पड़ मारूं,
اب جب آپ کا دل کرے کہ میں اس کو گالیاں دوں، جب آپ کا دل کرے کہ میں اس کو جو میرا جی میں آئے، جو میرے منہ میں آئے میں کروں، یاد رکھنا امتحان شروع ہو گیا ہے. تو مائنڈ یور لینگویج، کنٹرول یور لینگویج، کنٹرول یور فیلنگز اینڈ یور ایموشن اینڈ یور ہینڈ. یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، میں نام نہیں بتاتا آپ کو. آج کل وہ بندہ بشپ ہے. جب وہ پادری تھا تو وہ خودکشی کرنے کا سوچ رہا تھا، بیوی بچے لے کے گھر سے چلی گئی. تو بندے اس کو کسی نے کہا کہ آپ انکل سے بات کرو، آپ نے ان کو نہیں بتایا. کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے، ان کو نہیں بتایا. تو ان کا ان سے بات کرو، وہ آپ کو کوئی اچھا مشورہ دے سکیں گے. تو مجھے تو پتا تھا، لوگوں سے مجھے بتاتے رہتے تھے، لیکن میں کیسے کسی کی عزت پہ کوئی بات کر سکتا ہوں جب تک وہ راضی نہ ہو سننے کے لیے. تو پھر انہوں نے مجھے فون کیا کہ سر یہ آپ کو پتا چلا ہوگا. میں نے کہا مجھے پتا ہے، تو آپ سے مشورہ کرنا ہے. میں نے کہا بھائی میں مشورہ ایک بندے سے نہیں کرتا، مشورہ دونوں سے کروں گا. اگر آپ بیوی کو ساتھ لائیں تو پھر بات کر لیں گے. اس نے کہا جی وہ نہیں آئے گی. میں نے کہا بچوں میں تو تجھے زیادہ جانتا ہوں، تیری بیوی کو تو میں تھوڑے دن ہی ملا ہوں، لیکن یہ میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں. تو اس کو کہا انکل کہہ رہے ہیں، اور اگر نہ آئے تو میرا نام بدل دینا. یہ میں ثبوت کے طور پہ پیش کر رہا ہوں. جا کے بیوی کو میسج بھیج دے فون پہ کہ انکل نے کہا کہ تم نے بھی آنا ہے، اور اگر نہ آئے تو پھر تو بھی نہ آنا. اس نے جیسے ہی اس کو میسج بھیجا، اس نے کہا اگر انکل بلا رہے ہیں تو میں جاؤں گی. تو وہ دونوں آئے، کافی ہفتے ان سے بات چیت کی. مجھے پتا یہ چلا، اس نے کہا کہ انکل جی یہ مجھے گالیاں بھی دیتا ہے، پاسٹر ہے، گالیاں بھی دیتا ہے، مارتا بھی ہے. تو میں تو امریکن کاؤنسلر نہیں ہوں، نہ کینیڈین کاؤنسلر ہوں، پاکستانی بندہ ہوں. تو میں نے وہ زبان استعمال کی، اگر میں امریکہ میں ایسی کاؤنسلنگ کرتا تو جیل میں ہوتا ابھی تک. میں نے کہا بیٹا میری بھی بیٹی ہے، اور میں تو ہر ایک کو اپنی بیٹی اور بہن کی نظر میں دیکھتا ہوں. میرا خون کھول رہا ہے، میرے ہاتھ میں کلام پاک ہے. جب آپ سے میں باتیں کر رہا ہوں تو یہ کلام میرے پاس موجود ہے. جب تو نے کہا کہ یہ مجھے مارتا ہے، میں بتا نہیں سکتا کہ میرے تن بدن میں کیا ہوا ہے، یہ میری برداشت سے باہر ہے. تو میں نے کہا اب جو اگر تجھے یہ مارے، یہ میرا سیل فون ہے، تیرے پاس اگر نہیں ہے، یہ سیل فون ہے، مجھے فون کرنا کہ انکل جس نے مجھے مارا ہے. تو مجھے 25-30 منٹ دینا، کیونکہ تیرا گھر مجھے گاڑی میں آنے میں اتنا ٹائم لگ جائے گا. 30 منٹ کے اندر میں وہاں آؤں گا and I will break each and every knuckle of his hand. He will have no finger left to beat you again. یہ میرا وعدہ ہے. پولیس میرے ساتھ کیا کرتی ہے، مجھے جیل میں کیا جانا پڑتا ہے، I don't care. لیکن یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی ایسی خلاف ورزی کرے کلام کی، اور کسی کی بیٹی کو، اور کسی کی بیٹی کس کو کہہ رہا ہوں، میں اس کے باپ کی بات نہیں کرتا، اس کے باپ کی بات کرتا ہوں. یہ خداوند کی بیٹی ہے، اور خداوند کی بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرے، یہ مجھ سے برداشت نہیں. تو I will break each and every knuckle of your hand. آپ یقین کیجئے وہ ترتیب پاکستان میں کام کر گئی، اور اس کے بعد وہ ایسے شریف ہو گئے، بلکہ شریف النسل ہو گئے، دوبارہ وہ بحال ہو گئے اپنے رشتے میں، اور بالکل ٹھیک ہو گئے. تو کئی دفعہ ہمیں صلاح کاری کی ضرورت ہے، اور کلام کے ساتھ ہمیں اس کی صلاح کاری ملے. بے شک اس میں یونس کوکھر والا مسئلہ اگر ہو جائے تو وہ شاید دوسرے اگری نہ کریں، لیکن جہاں بیٹیوں کا معاملہ آتا ہے تو پھر مسئلہ تھوڑا سا اپنا باپ والا ڈالنا پڑتا ہے. تو اب یہ امتحان ہمارا زندگی بھر ہے، اور ہمیں اس کے اوپر قائم رہنا چاہیے. اب میں ایفیشین چیپٹر 5 verse 15 to 11 یہ آپ کو 15 to 19 یاد کرانا چاہتا ہوں. سارا تو نہیں پڑھوں گا، لیکن اتنا کہ غور سے دیکھو کہ کس طرح سے چلتے ہیں. یہ ہسبینڈ اینڈ وائف کے لیے خاص طور پہ
गौर से देखो किस तरह से चलते हो, नादानों की तरह या दनाओं की तरह, फैसला आपने करना है। Are you walking like a fool or are you walking like a wise person? अब फूल कौन है, नादान कौन है, बेवकूफ कौन है, अहमक कौन है, उल्लू कौन है, अहमक कौन है, ये मैंने सारे लफ्ज आपको दे दिए ताकि दिलों के ऊपर चोट लगे। हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप, मैरिज रिलेशनशिप, who is उल्लू, who is अहमक, who is बेवकूफ, who is नादान, who is fool, मूर्ख कौन है, मूर्ख ना बनो। ये बड़े अहम लफ्ज हैं, खास तौर पर सारे अंडरलाइन करके लिख लें। बीवी और शौहर को फूल नहीं होना चाहिए, बेवकूफ नहीं बनना चाहिए, नजात याफ्ता बेवकूफ नहीं होता। The wisdom of God dwells in their heart. उसका तमाशा ना लगाना। बेवकूफ की दोस्ती से बचना बेहतर है। क्यों? इसलिए कि वो अगर अपनी भलाई भी करना चाहता है तो भी उससे बुराई सरजद हो जाती है, तो अड्डा पला हो जाए। यानी बेवकूफ से दोस्ती ना करना, बेवकूफ से शादी ना करना, क्योंकि बेवकूफ से शादी करोगे इसलिए शादी के बाद की काउंसलिंग इतनी जरूरी नहीं जितनी शादी करने से पहले की काउंसलिंग जरूरी। बंदा तो देखो, बंदा है कि दरिंदा है। ये बातें मैं बाप की हैसियत से सख्त लहजे में करता हूं ताकि मेरे लफ्ज खुबे जाके दिल में, दिमाग को टकराए और हम समझे कि ये बातें क्या है। तुझे मोहब्बत करना नहीं आता, मुझे मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं आता। याद रख, तुम्हें मोहब्बत करना नहीं आता और मुझे मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं आता। जिंदगी गुजारने के दो ही तरीके हैं गालिब, एक तुझे नहीं आता, एक मुझे नहीं आता, कर लो जो करना है। ये दो ही तरीके। इब्ने आदम ने अपने सारे जुर्म बिन्नते हवा पर डाल दिए। आदम ने हवा की बेटी के ऊपर अपने सारे जुर्म उसके ऊपर डाल दिए हैं। आज हमारे खानदानों में औरत का ये मकाम बन चुका है। इब्ने आदम ने गुनाह खुद करते हो, इल्जाम बीवी को देते हो। झूठ कहते हैं कि संगत का हो जाता है असर। झूठ कहते हैं कि संगत का हो जाता है असर। कांटों को तो आज तक महकने का सलीका नहीं आया। कभी आपने कांटों को महकते देखा? तो ये बात दुरुस्त है कि संगत का असर होता है, लेकिन कांटों पे नहीं होता। इसलिए पहचान करनी है कि कांटे कौन है। ज़बूर 14 पहली बाब, अहमक ने अपने दिल में कहा कि कोई खुदा नहीं। तो अगर वो अहमक है, लड़की या लड़का, बीवी या शौहर, खुदा की नफी कर देंगे। वो कहते हैं खुदा ही कोई नहीं। तो जो खुदा ही कोई नहीं तो फिर तालीम होते वास्ते है ही नहीं, ये हदायत उनके लिए तो है ही नहीं। वो बिगड़ गए, उन्होंने नफरत अंगेज काम किए हैं। कोई नेकोकार नहीं, अहम खुदा से हटकर रहता है, दूर रहता है। तो इसलिए शादी करने से पहले अच्छी तरह से ठोक बजा के सोचो किसके पल्ले बांध रहे हो बेटी को। नौकरी अच्छी देखकर, तनख्वाह अच्छी देखकर, ऊपर की कमाई देखकर, उसकी माँ और बाप को देखकर, क्या उस बंदे का भी कोई मुआयना किया है? उस लड़की का भी कोई मुआयना किया है? आज लड़कियों की जो खुसूसियत बताई जाती है, साड़ी कुड़ी टिकटॉक से बड़ा कमांदी है, तो अड्डा पला हो जाए। टिकटॉक से बहुत पैसा कमा रही है, और टिकटॉक में क्या होता है वो आपको पता ही है। तो अहमक से दूर रहना है। ऐसे लोग जो खुदा का खौफ नहीं रखते, लिहाजा वो एक दूसरे के ताबे भी नहीं रह सकते। जब फाउंडेशन ही नहीं है
वो एक दूसरे के ताबे कैसे रहेंगे? एक दूसरे की मर्जी वो कभी भी कबूल नहीं करेंगे, वो अपनी मर्जी मनवाएंगे। तो लिहाजा एक्शन जो है, अमल जो है और अपने अल्फाज जो हैं, इन दोनों को मरकज बनाना है अपने किरदार का। तो ऐसा इंसान जो एंटी गॉड थिंकिंग रखता हो, उसका लिविंग पैटर्न जो है वो भी एंटी गॉड होगा। इमेजिन दैट। बस ये स्टैंडर्ड बता रहा हूं। गुर्बत का, पैसे का ख्याल ना करना, सारी चीजों का ख्याल ना करना, चमक की तरफ ना जाना। Ephesians chapter 2 verse 1 to 3, हम सब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे, ये बात याद रखनी चाहिए। और हम दुनिया की रवश पर चलते थे, हम शैतान की अमलदारी पे चलते थे, नाफरमानी की रूह पर चलते थे, अपने जिस्म की ख्वाहिशों में जिंदगी गुजारते थे, हम गजब के फर्जंद थे। ऐसे ही ना अपने आप को फूंक देते रहना, मैं बड़ा फरिश्ता हूं। दूसरे लफ्जों में हम सब फूल थे। ये बात याद रखना बहुत जरूरी। एक तो फूल के साथ चलना नहीं, लेकिन ये भी नहीं भूलना आई वॉज वन ऑफ देम, आई वॉज अ फूल। इस वजह से हमें खुदा के दुश्मन थे और फिर अब हम खुदावंद के दोस्त हैं, लिहाजा हम पर ताबेदारी जो है वो लाजम है। अब मैं थोड़ा सा वक्त रह गया है, बहुत सारी बातों को मुख्तसर करके अब शौहर और बीवी को गौर करके सोच समझ कर चलने की हदायत है। अक्लमंद लोगों की तरह चलना है, नादानों की तरह नहीं चलना। तो बी सब्जेक्ट, ताबे रहना, ये बहुत लाजम है। ये राज है खानदान को आगे बढ़ाने का और अच्छी औलाद के साथ चलने का। एक दूसरे के ताबे रहते हैं। पहला कुरिन्थियों 16 बाब की 16 आयत, बस मैं तुमसे इल्तमास करता हूं, हाथ बांध के गुजारिश करता हूं कि ऐसे लोगों के ताबे रहो जो मुकद्दसों की खिदमत के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे लोगों के ताबे रहो। अब सिर्फ मियाँ और बीवी के ताबेदार नहीं, ऐसे लोगों के भी ताबे रहो जो मुकद्दसों के लिए समान यानी मुकद्दसों की खिदमत के लिए तैयार रहते हैं, बल्कि हर एक को जो इस काम और मेहनत में शरीक है उन लोगों के भी ताबे रहो। जिसका मतलब है खुदा के खादमों के ताबे रहना भी लाजम है। पहला कुरिन्थियों 2 बाब की 13 और 14 आयत, खुदावंद की खातर इंसान के हर निजाम के ताबे रहो। तो हमें रिश्तेदारों के ताबे, माँ बाप के ताबे, बहन भाइयों के ताबे, अजीजों के ताबे, निजाम के ताबे, बादशाह के ताबे, हाकिमों के ताबे, इन सब की ताबेदारी करना लाजम है। हमें तो हुक्म है कि सबका हक अदा करो। जिसको खराज चाहिए उसको खराज दो, जिसको महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसकी इज्जत करना चाहिए उसकी इज्जत करो। आप तो ताबेदारी पर ही, सबमिशन पर ही परेशान हो रही हैं औरतें। यहां कितनी और बातें मैंने आपको बता दी। रोमन चैप्टर 13 वर्स 6 एंड 7 आपके सामने तिलावत की है। वर्स 13 चैप्टर 13 वर्स 6 to 7। तो अब जल्दी के साथ इसके थोड़े सबूत आपके सामने रखना चाहता हूं ताबेदारी के। ये बातें आई कहां से हैं बीवी के लिए? अब ये बड़ा सख्त कलाम है, आप इसको जुबानी जानते हैं, लेकिन फिर भी याद कराना मेरा फर्ज है। मैं तेरे दर्द को बहुत बढ़ाऊंगा, तेरे दर्द हमल को बहुत बढ़ाऊंगा। खुदावंद के अल्फाज है। कब के? शैतान की बात मान जाने से और मियाँ को अपनी गुनाह में शामिल करने से। वो बेचारा मोहब्बत खातर ही खा गया, आप ही बहस करके खादा। शैतान से बड़ी उसने डिस्कशन की, मियाँ को जैसे दिया वो चुप करके साधु बन के खा गया। वो पूछते सही नहीं, कोई पूछा नहीं। आज तक बंदे बीवियां दी गल्लां मन रहे ने बहुत सारे बगैर पूछे। डिस्कशन करना, गौर करना जरूरी है। हर बात ऐसे मानना ना शौहर के ऊपर लाजम है ना बीवी के ऊपर लाजम।
डिस्कशन करना, गौर करना, दुआ करना, एक दूसरे से मशवरा करना, मोहब्बत में, प्यार में, अकल के साथ बहुत जरूरी है। ये है खानदान की बातें। बीवी होने की धमकी ना दो, शौहर होने की धमकी ना दो, अपनी तालीम का हमें दास ना गिराओ, पैसों का जिक्र ना करो, तो मैं तेरे दर्द हमल को बहुत बढ़ाऊंगा, तू दर्द के साथ बच्चा जनेगी। इसका मतलब है पहले ऐसा नहीं होना था, दर्द तो होना था लेकिन मैं बढ़ाऊंगा, ये सजा है। और तेरी रगबत अपने शौहर की तरफ होगी, योर डिजायर विल बी टुवर्ड्स योर हस्बैंड। ये मैंने नहीं कहा, ये सजा का हिस्सा है, अब भुगतो। तेरी डिजायर विल बी टुवर्ड्स योर हस्बैंड। और अगली बात सुने, ये नहीं हम याद करते, और तेरा शौहर तुझ पे हुकूमत करेगा। रियाया सुन ले, तेरा शौहर तुझ पे हुकूमत करेगा। अगर ये पसंद नहीं तो गिरजे ना जाए, निकाह ना करी, ये मेरा हुक्म नहीं है, कलाम पाक का हो। औरत के गुनाह की वजह से ये सजा औरत को दी गई है, औरत को के सारों को बढ़ा दूंगा। तेरे बच्चे दौरान ने बच्चे की पैदाइश, तेरी ग्रीफ, तेरा फियर बढ़ जाएगा और बहुत परेशानी होगी। तो जरा तवज्जो फरमाइए, गौर कीजिए, गुनाह की वजह से दुनिया में सौरो दाखिल हुआ है। द सिन की एंटर होने की वजह से द सौरो, द पेन, द ग्रीफ हैज एंटर्ड द वर्ल्ड। आंसुओं का दरिया शुरू हुआ है, नाफरमानी और गुनाह करने की वजह से, बल्कि उसे तो स्प्रिंग ऑफ सॉरो कहना चाहिए, द स्प्रिंग ऑफ सॉरो, आंसुओं की, दुखों की बहार। ये दो ऑपोजिट लफ्ज हैं। बहार तो, स्प्रिंग तो अच्छा मौसम होना चाहिए, लेकिन इसके साथ अगर आंसू शुरू हो जाए तो वो फिर इतनी अच्छी बहार नहीं रहती। वैसे भी बहार में एलर्जी बहुत हो जाती है और फिर लोगों को एलर्जी की मेडिसिन खानी पड़ती है। अगर गुनाह ना किया जाता तो दुखों, आंसुओं और दर्दों का जो जिक्र मैंने अभी किया ये कभी ना होता। फिर बच्चे हो जाने के बाद, औरत के लिए कह रहा हूं, मां के लिए कह रहा हूं, पहला तो दर्द ये, दूसरी मंजिल कि जब बच्चे पैदा हो गए फिर उनकी देखभाल, खुराक, लिबास, उनका नहाना धोना, और फिर उनकी बेअदबी, बड़े होकर अगर वो बेअदब हो गए, नशे की आदतें, जालिम, जुल्म, कत्ल, चोरी और थानों के चक्कर, अदालतों के चक्कर, ये उसके माँ के गम में और इजाफा करते रहते हैं। और कई माँ तो अपने बच्चों के हाथों से मजबूर हो गई। कितना जुल्म है, क्यों? क्योंकि उन्होंने खुदावंद की वफादारी को रद्द किया। जब खुदावंद की वफादारी को रद्द करोगे तो इसके असरात बीवी पे पड़ेंगे, माँ पे पड़ेंगे, बाप पे पड़ेंगे, उनकी औलाद पे पड़ेंगे, मुआशरे पे पड़ेंगे। दिस इज सच अ लड़ी, एक चेन है। अगर वो एक लड़ी की चेन, एक चीज आपने तोड़ दी, सारा स्ट्रक्चर जो है वो जीरो हो जाएगा। अगर बच्चे फूल, बेअकल, नालायक, खुदा के इनकारी निकले, दौलत और शोहरत के पुजारी निकले, फिर औरत का, माँ का, बीवी का गम और बढ़ जाता है। पूछो जाके उन माँ से कैसे रोती हैं, कैसे फरियाद करती हैं। हद ये कि अपनी औलाद के लिए बद्दुआ करें। एक गम से छूटता है, दूसरा गम शुरू हो जाता है। यह है गुनाह के असरात। तो खुदा रास्त जज है, ही इज अ राइचियस जज। अपने गमों में खामोशी और सोच विचार करना अच्छा अमल है। हमें हम्बल होने की जरूरत है। पहला तिमोथियस चैप्टर 2 वर्स 11 to 12 याद कराना चाहता हूं, आप उसको जरूर पढ़िएगा। वक्त थोड़ा ऊपर हो चुका है और मैं इसको शायद यही खत्म भी करना चाहता हूं क्योंकि टाइम हो गया, और बाकी जो बातें हैं वो फिर कभी जिंदगी रही तो करूंगा। आई होप के इन्हीं दो आयतों की, अभी हस्बैंड के बारे में तो रह गया कि शौहरों
अपनी बीवियों से अपनी अपनी बीवी की बात मैं बार बार कह रहा हूं, अपनी बीवी से मोहब्बत तो करते हैं लेकिन किसी और की बीवी से शायद। ओ भाई, अपनी बीवी से मोहब्बत करो, और कैसी मोहब्बत करो, वैसी करना जैसे मसीह ने की। क्यों? क्योंकि मसीह कलीसिया का जैसे सर है, तुम बीवी के सर हो। अब मैं यही बात आपके सामने रख, अगर फर्ज करो, मैं मिसाल देता हूं, सर की अहमियत बताना चाहता हूं। अगर मैं सुबह उठा आज मिसाल के तौर पे, मेरा हाथ मुझे कहता है गुड मॉर्निंग सर, मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग, क्या हो गया भाई? वो कहता है सर हाउ कैन आई हेल्प यू, हाउ कैन आई सर्व यू। ये मेरा बदन कह रहा है, मेरा हाथ कह रहा है मुझे। मैं कहता हूं क्या कर सकते हो? कहता है मैं आपकी दाढ़ी को ट्रिम कर सकता हूं, आपको नहला सकता हूं, आपके बाकी जो कपड़े पहना सकता हूं और जूते पहना सकता हूं। ये जितने भी काम आप मुझसे लेते, मैं सारे करने के लिए तैयार हूं सर। थैंक यू फॉर गिविंग मी रेस्ट होल नाइट। फिर मेरा पाँव मुझसे बोलता है सर हाउ कैन आई हेल्प यू। मैं कहता हूं क्या करोगे? मैं आपको बाथरूम तक ले जा सकता हूं, मैं आपको नीचे ले जाता हूं, मैं आपको जूम के कंप्यूटर के सामने बैठा देता हूं। वो मैंने कहा भाई ये क्या बातें कर रहे हो, आज तक तो तुमने ऐसी बातें की नहीं, तुम्हें अपनी हैसियत का पता नहीं है। हाथ, टांग, कान, नाक, जुबान, आंख, every part of my body is not my boss. They are the boss of my head, my brain. जब मेरा दिमाग कहता है हाथ को ऐसे करो तो वैसे करता है, जब मेरा माइंड कहता है पाँव को चलो तो वो चलता है, जब मेरा दिमाग कहता है कि सोचो तो मैं सोचता हूं, वो कहता है बातें करो तो मैं बातें करता हूं। विदाउट माई हेड आई एम नोबडी, आई एम डेड। तो अगर शौहर बीवी का सर है, इस मकाम को समझो। अगर शौहर का सर खुदावंद है, इस मकाम को समझो। अगर कलीसिया का सर खुदावंद है, इस बात को समझो। आज बहुत सारी कलीसियाएं हैं जिसमें पादरी इज द हेड ऑफ द चर्च, बिशप इज द हेड ऑफ द चर्च, और उन चर्चों की हालत देख लें। Christ is not the head of the church any longer. His word is not ruling in those churches because the pastor is the head of the church. Shame on that church. Head is Christ my Lord. उसकी मर्जी चलेगी। वो हुक्म दे तो जिस्म हिलेगा, वो हुक्म दे तो फिर बात बनेगी। तो जैसे Christ is the head of the church, so is husband head of the wife. अब अगर खुदावन के हेड होने पर एतराज है कि उसको कलीसिया का सर नहीं होना चाहिए, तो फिर हस्बैंड के भी हेड होने पर एतराज होना चाहिए। लेकिन अगर वहां एतराज नहीं है तो यहाँ भी एतराज नहीं है। तो ये औरत की रगबत, उसकी डिजायर और उस पर हुकूमत शौहर, ये बात जरूर नोट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी बात तवज्जो से सुनी। आई ट्रूली होप कि हमारी जो नौजवान बेटियां हैं वो कलाम से हदायत लेंगी, फेसबुक से हदायत नहीं लेंगी, और अपने सहेलियों से, दोस्तों से बातें और उनके मशवरों पर नहीं चलेंगी, और ना ही माँ की बातों पर। ये तंग करी ना एक घंटी बजा दी, ये रुखसती के वक्त माँ अपनी बेटी को नसीहत कर रही है। कोई शिकायत होए ना, एक घंटी बजा दी, फिर वेखी मैं संभाल लूंगी। और आखिरी बात करके मैं खत्म करता हूं। एक हकीकत आपके सामने रखनी है, एक काबिल गौर हकीकत आपके सामने रखना चाहता हूं। मौजूदा दौर में तमाम अच्छी बातें, तमाम अच्छे और नेक ख्यालात, तमाम सच्ची मोहब्बतें, तमाम सच्चाइयां, दिलो दिमाग से टकराने वाली वफादारियां और उनकी कहानियां, इंसानियत और अखलाकियात की बड़ी बड़ी दास्तानें, सारी की सारी हमारे सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है, लेकिन इंसान के किरदार में मौजूद नहीं है। हद ये है कि उन बातों का प्रचार करने वाले, उन बातों का लिखने वाले और उन बातों को कॉपी करके शेयर करने वाले भी अपने अमल में इन चीजों को
नहीं रखते। ये बड़ी ट्रेजेडी है, ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह वही है, लोग इखलाकियात, सच्चाई, मोहब्बत के पैकर खुदावंद के जात पाक से ना वाकिफ है, जहां से तमाम सच्चाइयों के चश्मे फूटते हैं, जहां से तमाम वफादारियों के चश्मे निकलते हैं, जहां पर मोहब्बत की खातर सलीब पर खून बहाया जाता है। हाउ मच मोर कैन ही लव। तो जहां से ये मोहब्बत, ये सच्चाई, ये राह, ये हक जिंदगी निकलती है, व्हेन यू आर नॉट रीडिंग हिज वर्ड, फिर जितनी मर्जी फेसबुक करते रहो, शेयर करते रहो, लिखते रहो, कुछ नहीं होता। इतनी नेक नसीहतें पढ़ के अगर दुनिया तब्दील होती तो कई दुनिया में इनकलाब आ चुके होते। इनकलाब आएगा खुदावंद की जात पाक की वजह से। May God bless you and give you wisdom to remain faithful to his word and to your Lord and Master. Amen.